right? The question is, if the point 34 lies on the graph of equation, this is the equation, right? Then you have to find the value of graph. You know the these are the given points. It means they are the solution of this equation. The given equation is your 3y is equal to ax plus 7, and the point are 3 comma 4. So it means 3 is your x and 4 is your y. So putting the value here x and y, we can get the value of a. Yes, no, right? You put what is the value of y? 3 into 4 is equal to what is the value of x? X is 3 into 3 plus 7. Can you solve this question? This equation? So tell me, 3 into 4 means how much? ठीक है, right. अब number one side send it here. So 12 minus 7 is equal to 3a, right? It will be 5 is equal to 3a, or a is equal to how much? 5 by 3. It means, right? इसको मैं we can also write 3 is equal to 5, right? Equal to में we can shift position. So got it? The value of a is your 5 by 3. So remember one question आपके in your exam will be on finding the value of a. A आएगा, k आएगा, right? This is 1 mark question. Again I'm repeating, question क्या है कि given equation given है and the points are given, and question is find the value of a, right? The given equation है, put the value x and y in the given equation, solve it, you will get the answer a. This is clear? Yes, no? ठीक है. Now important question, right? 1 mark के question आपके, these are all. Now question number second. Question second is your determine. Remember, each and every question is very important here. All are new question. Determine the points. Determine the point on graph. Determine the point on graph of the equation. Of the equation 2x plus 5y is equal to 20, whose x coordinate is 5 upon 2 times its ordinate. Please note the word यहाँ पर, ये देखो ordinate. Ordinate means right? So क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. Determine the point on graph, right? आपका determine करना है, plot नहीं करना है, right? The equation is 2x plus 5y is equal to 20, और it is condition is this one, x coordinate है, right? The x coordinate is 5 upon 2 times the y coordinate, right? तो अब ऐसे let हम assume कर लेते हैं कि आपका जो let देखो y coordinate है, आपके दे रहा है 2 coordinates x and ये these two are coordinate, and the condition given जो x coordinate है वो किसके क्या है, 5 on time its ordinate, and ordinate means it is your y. So 5 upon 2 times मतलब multiply into y, it means 5 upon 2 y. So you've got the value of x, right? X की वैल्यू मिल गई. The value of x is in term of y, how much? 5 upon 2 y. Put in this equation 2 into the value of x is how much? X की वैल्यू कितनी है? 5 upon 2 y plus 5y is equal to 20. We can solve this one. 2 से 2 cancel. 5y plus 5y how much?
10y, 10y is equal to 20, so y is equal to how much? 20 upon 10, how much? 2. So you've got the value of y. Can you find the value of x? X is equal to how much? 5 upon 2. Y? 5 upon 2 into 2. The value of x is how much? X की value how much? It is 5. Then your coordinates are, coordinates क्या बन के आ गए? X और y. X की value कितनी आ गई? 5 और y की value is how much? 2. तो ये पॉइंट्स हो गए. क्वेश्चन ये बोला डिटरमाइन द पॉइंट. आपको पॉइंट में पॉइंट निकालना है, ये निकालना है कोऑर्डिनेट ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन whose x coordinate is 5 upon 2 times ordinate, राइट. ये कंडीशन गिवन है. x से क्या है? y का 5 upon 2 टाइम्स है. तो यहाँ से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y we have taken out and put the equation, put the value of x in given equation, right. Solve it, you will get the value of y. Again putting here x is equal to 5 upon 2 y, putting the value of y, आपका x की वैल्यू आ जाएगी. These two are the points. This is your answer, right. One question of this type it will come in exam. It is clear? Right, each and every question note, you have to note down your copy. Clear? सब क्वेश्चन करने हैं तभी आपके लिए आसान रहेगा. ठीक है प्रवीत, स्क्रीनशॉट लो. ठीक है. नाउ please see the language of the question. The main problem is the language of question. If you are able to understand the language, you will do the question. Now question number 3rd, right. आपकी बुक में ये द टैक्सी फेयर, एक क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन आता है द टैक्सी फेयर इन द सिटी इज एज फॉलो, राइट. दिस इज क्वेश्चन का लैंग्वेज बना. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, for the first kilometer the fare is 8 rupees, right. And for the subsequent distance, right, it is rupees 5 per kilometer, right. Rupees 5 per kilometer, right. It is given taking the distance covered as x kilometer and total fare rupees y. Write a linear equation and लास्ट में आता प्लॉट करो, राइट. एंड प्लॉट, राइट. दिस आपका ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर? फेयर मीन्स मेला. बेटा ये मेला वाला नहीं है. ये एक होता है ये क्या होगा? FARE. हाँ, आपके ये भी फेयर है, ये भी फेयर है. ये आपका वो किराया हो गया. आप राइट, व्हेन यू ट्रेवल एनीवेयर, बस में किराया वराया देते हैं हम, टैक्सी फेयर बोला ना. ठीक है. अब देखो क्वेश्चन क्या है. ये मान लो सपोज कोई ये आपका एक पाथ है A से B, यू आर गोइंग हियर, बट फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ये जो पहला किलोमीटर है, देखो टोटल कितने किलोमीटर चले, डिस्टेंस कवर्ड इज हाउ मच?
डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर, राइट। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हमने, ये पूरा कितना है x किलोमीटर लिखा है ना। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 एंड द सब्सिक्वेंट फेयर इज ₹5 टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड कितना लिया, x किलोमीटर। ये है पहला किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है। तो बाकी कितना बच गया, अगर ये पूरा x है तो व्हाट इज रिमेनिंग। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, अगर ये 10 किलोमीटर है, सपोज 10 किलोमीटर है, अगर यहां से यहां तक कितना है 1 किलोमीटर, तो बाकी कितना बच गया, 9 हो गया, राइट। अगर ये x हो गया तो कितना बच गया, राइट, x-1। तो फ्रॉम हियर टिल हियर इट इज x-1 किलोमीटर, ये किलोमीटर हो गया, गॉट इट। अब फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए कितने रुपीस है, राइट। फ्रॉम यहां से लेकर यहां तक जाने में आपको 8 रुपीज देने होता है, चाहे आप, राइट, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर आपको, राइट। अब बोला उसके बाद सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, उसके बाद आप कितना भी चलो, सबके लिए कितने रुपए देने आपने, रुपीज, हाउ मच, ₹5 देना आपने, 5। तो बोला कि टोटल फेयर कितना है, तो टोटल फेयर क्या मानना है मैंने, टोटल फेयर इज हाउ मच, ₹y। तो y इज इक्वल टू, राइट, पहले फॉर द फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपए दिए हमने, ₹8, राइट। यहां पर लिख देता फर्स्ट किलोमीटर के लिए, प्लस अब बाकी कितने किलोमीटर कवर किया, x-1 किलोमीटर। अब देखो पहले अगर मैं इसको दोबारा समझाऊं आपको, अगर देखो ये 10 किलोमीटर था, ये आपने 9 बोला, यहां तक के लिए यू हैव गिवन 8 रुपीज, तो बाकी के लिए कितने रुपए दोगे आप, अब टोटल 8 इंटू 9। देखो पहले किलोमीटर के लिए क्वेश्चन क्या है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर यू आर गिविंग हाउ मच रुपीज, यू आर गिविंग 8 रुपीज, और उसके बाद आप जो भी किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, जितने भी कर रहे हो, उसके लिए आप कितने रुपए दे रहे हो, रुपीज, हाउ मच, 5। तो यहां से यहां तक तो आपने 8 रुपए दे दिए, अब कितना और ट्रेवल किया आपने, हाउ मच यू ट्रेवल, 9, यू ट्रेवल 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर को आप कितना दोगे, यू विल गिव 45। सिमिलरली अगर यहां पर x-1 है, तो x-1 के लिए कितना दोगे, x-1 इंटू 5। अब ये टोटल हो गया आपका, अब सॉल्व करो, y इज इक्वल टू 8 इंटू 1 8, प्लस सॉल्व करो 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स, 5x, 5 इंटू -1 -5। These two are number, we can solve this, how much, solve करो, how much, y is equal to 5x plus 3, you've got a equation बन गया है, linear equation। कैन यू प्लॉट दिस वन, इसको प्लॉट करते हम, तो यू कैन प्लॉट योरसेल्फ दिस वन, ठीक है, इसे खुद प्लॉट करना, राइट, दिस पार्ट। तो रिमेंबर ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चेक करना। टेक स्क्रीनशॉट, आई एम गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, ठीक है, वन चीज, एक चीज ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये चीज ध्यान रखना। कोई भी लाइन अगर किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, उसकी इक्वेशन क्या होती है, राइट। आपकी इस तरफ इक्वेशन कैसे बन गया, देखो ऐसे, दिस इज विच एक्सिस, दिस इज एक्स, और ये दिस इज वाई,
अब देखो इक्वेशन नंबर लिख दो 1 2 3 -1 -2 और यहाँ पर 1 और 2 1 एंड ये -1 और -2। अब इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस आपके ये वर्टिकल लाइन, तो इसके बगल में कहीं पर भी अगर आपने एक लाइन खींच दी, चाहे इधर खींचो चाहे लेफ्ट साइड या राइट साइड, ये दोनों लाइन पैरेलल है, यस नो, राइट। सपोज ये लाइन कहां से पास हो रहा है, 2 से पास हो रहा है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द एक्स की वैल्यू कहां से पास हो रही है, ये 2 है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, द इक्वेशन बिकम x इज इक्वल टू 2, इसको यहां भेजो तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। द लाइन इज पासिंग थ्रू द वैल्यू 2, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये पैरेलल है, यस नो, राइट। सिमिलरली देखो एक चेंज करते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, आप पे इस तरह क्वेश्चन आ गया, इज दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। इसको चेक करने के लिए क्या होना कि ये पूछा कि ये क्या पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इसको इधर भेजो, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, -3, राइट। अब देखो ये -2 -3, अब यहां से एक लाइन प्लॉट कर दो सीधा। अगर इस लाइन के ऊपर आप कहीं भी जाओगे तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, द वैल्यू ऑफ x विल रिमेन हाउ मच, -3। अब ये क्या, ये दोनों पैरेलल हैं, राइट, पैरेलल है ना, कि देखो ये डिस्टेंस ऑलवेज, दिस डिस्टेंस आर ऑलवेज इक्वल। तो जब भी आपको इस फॉर्म में मिल जाए x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये लाइन किसके पैरेलल होगी, द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, गॉट इट, राइट। तो इन जनरल में हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी नंबर है x इक्वल टू a मिल गया आपको और x माइनस a मिल गया आपको, राइट, तो ये इक्वेशन किसकी होती है, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, गॉट इट। एक ही जगह कोई भी नंबर आता है, एनी वैल्यू यू कैन पुट, -1 -2 या 1 2 3, इट इज क्लियर, राइट जी, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस करते हैं, अब पैरेलल टू x एक्सिस। अब देखो ये अगेन दिस इज x एक्सिस और ये y एक्सिस, दिस इज 1 2 3 -1 -2 -3 0, ये 1 2 -1 -2। अब पैरेलल टू x एक्सिस बोला, कोई भी लाइन अगर इस तरह आएगी, ये दोनों आपस में पैरेलल है, राइट। यहां पर y की वैल्यू कितनी है, y वैल्यू इज हाउ मच, 2, राइट। तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। सिमिलरली अगर मैं यहां से नीचे करूं, ये लाइन इसके पैरेलल है x एक्सिस के, राइट, तो y इज इक्वल टू -3, तो सेम वही चीज हो गया, अगर y की वैल्यू कितनी होगी a, राइट, तो ये लाइन, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू विच एक्सिस, दिस लाइन विल पैरेलल टू x एक्सिस, राइट, दिस इज ये पैरेलल टू x एक्सिस, इट इज क्लियर। yes any problem here, राइट। एक थोड़ा सा चेंज है, अगर मैं ऐसे बोलूं, एक क्वेश्चन आता है x इक्वल टू माइनस, सॉरी y इक्वल टू -a, ये आपका ओरिजिन से अबव लाई करेगा, बिलो लाई करेगा, बिलो, राइट, कि देखो नेगेटिव है, राइट, ये आपका ओरिजिन, y की वैल्यू यानी ओरिजिन से बिलो जो भी होगा वो आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। ऐसी हाँ क्वेश्चन इसी का आता है आपका, अबव एंड बिलो का आता है,
दिस इज क्लियर। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे, एक क्वेश्चन विल कैसे फ्रेम करके आता है क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ of the equation represented by the line which is parallel to x-axis and is 4 unit above it राइट। क्या बोला कि एक लाइन किसके पैरेलल है, एक्सिस के। तो एक्सिस का आपका इक्वेशन क्या होती है, लाइन पैरेलल टू एक्सिस, तो y इज इक्वल टू ए होता है। यस नो, एनी इक्वेशन पैरेलल टू एक्सिस मींस y इज इक्वल टू ए, यानी कि इस तरह होना चाहिए। ये दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, राइट। इक्वेशन इज पैरेलल टू x एक्सिस। बोला कि वो क्या है, x एक्सिस से कितना यूनिट ऊपर है, 4 यूनिट अबव इट। अबव मतलब अबव मीन्स ऊपर, 1 2 3 और 4, ये -1 -2। अब क्वेश्चन यही है कि यू हैव टू प्लॉट, देखो पैरेलल टू एक्सिस बोला, यानी कि लाइन इस तरह आएगी आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइन बन के आएगी इस तरह। अब बोला 4 यूनिट अबव, तो देखो 1 2 3 4, यहां से एक लाइन खींच दोगे आप। ये यहाँ पर y की वैल्यू कितनी की, y इज इक्वल टू 4, राइट। तो y इज इक्वल टू आपका 4 हो गया, ये की क्वेश्चन बन गया आपकी, और ये आपका आंसर आ गया। इसको इधर भेज दो, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज क्वेश्चन। गॉट इट, 4 यूनिट अबव, इस तरह क्वेश्चन आता है आपका, राइट क्लास। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि फाइंड सम अदर पॉइंट्स, कुछ और पॉइंट्स निकालो इसके। तो कैन यू फाइंड अदर पॉइंट्स, जैसे यहां से एक पॉइंट जाएगा, ये 0 और 4, ये कितना बन जाएगा 0 4, यहां पर वो ये -1 है, सॉरी ये 0 4 नहीं, ये -1 है, -1 -2, तो -1 -4, आगे क्या आएगा -2 4 आएगा, फिर -3 4, ऐसे ही आपका यहाँ पर 1 4 2 4 3 4, आपके बहुत सारे पॉइंट्स आपके यहाँ। इट इज क्लियर, राइट। ठीक है, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन देखो, एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व 2x + 1 इज इक्वल टू x - 3, राइट, एंड प्लॉट दिस इक्वेशन इन, पहला आता है कार्टेशियन प्लेन, और सेकंड आता है आपका कार्टेशियन प्लेन एंड नंबर लाइन। एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। पहले सॉल्व करो से, 2x + 1 इज इक्वल टू x - 3, सॉल्व करो द वैल्यू, y है नहीं आपका, तो x की टर्म वन साइड, नंबर वन साइड, 2x - x इज इक्वल टू -3 - 1, हाउ मच, सॉल्व इट, it will become here x is equal to -4, राइट। अब ये क्वेश्चन आ गया कि x इक्वल टू -4 है, इसको बोला कि आपको प्लॉट करना है नंबर लाइन में, और सेकंड कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, फर्स्ट पार्ट, कार्टेशियन प्लेन ये होता है जो हम बनाते आ रहे हैं, दिस इज कार्टेशियन प्लेन, x एक्सिस एंड y एक्सिस, राइट। अब देखो ये लाइन किसके पैरेलल आएगी, x इक्वल टू -4, ये कौन सी इक्वेशन आ रही है, x y के,
तो -4 कहां पर आएगा? -1, -2, -3 और यहां कहीं -4 आएगा, राइट। तो यहां से एक लाइन स्ट्रेट कर दोगे इस तरह, तो ये इक्वेशन आ गई x इक्वल टू -4 की इक्वेशन आ गई। गॉट इट? ठीक है, कार्टेशियन प्लेन क्लियर हो गया। अब सेकंड क्या है? नंबर लाइन। नंबर लाइन पढ़ा आपने? 0, 1, 2, 3 ऐसी, तो -1, -2, -3 और -4। तो ये -4 हो गया आपका। नंबर लाइन में प्लॉट करना है, जो आपने छोटे क्लास से पढ़ता आ रहे नंबर लाइन। तो x इक्वल टू -4। दिस इज क्लियर, राइट? So these are the question, और सारे क्वेश्चन, सारे these are the question, all question are very important.